Hello students, today I am going to start chapter 3 which is basic HTML elements. In this chapter we will discuss about what is HTML, advantage and disadvantage of HTML, structure of HTML, tags and their attributes and so on. So let's start. The internet is the largest information database which has become vital part of our life. The internet can be explained as a pool of networks containing various web pages. Each web page that you see on the web browser is created using a language HTML. So, what is HTML? HTML. HTML is an acronym for Hypertext Markup Language. It is a document layout and hyperlink specification language, which means it is a specification language which is used to design a layout of web page document, or you can say web page. It is a subset of HTML, Standard Generalized Markup Language. HTML is not a programming language, it is just a markup language which is used to design a layout of web page. HTML has two main keywords. First one is hypertext and second one is markup language. Hypertext is a text that contains links to other text. This implies that when you click the hypertext, you are redirected to another web page on the internet, which means you will navigate to another web page or linked web page on the internet. Markup language, a language which is used to design layout of web page, is a markup language. HTML was created by Tim Berners-Lee late 1991, and here you can see editor used in HTML, which means which editor you use for coding in HTML, which is Notepad, Notepad++, Edit Plus are the editors which you use for coding, and extension is r.html and .html, which means when you save your HTML coding, whatever coding you type on editor, when you save that coding, you have to use extension name .html with your the name of file name. मीन्स आप जब भी HTML कोडिंग को सेव करोगे तो फाइल नेम के साथ आपको एक्सटेंशन नेम भी प्रोवाइड करना होगा. Okay, and here you can see different version of HTML. HTML 1.0. HTML 1.0 was developed in 1991. HTML 2.0 was developed in 1995. HTML 3.0 and HTML 4.0 both were developed in 1997, and the latest version, which is HTML 5.0, was developed in 2014. So in first version, which is HTML 1.0, only 10 to 15 tags were used. आपके फर्स्ट वर्जन HTML के फर्स्ट वर्जन में सिर्फ 10 to 15 टैग्स ही यूज होते थे, बट नाउ डेज 150 to 200 टैग्स आर यूज फॉर कोडिंग. So now come to the next topic, which is advantage of HTML. It is easy to understand code as does not require any programming language, which means you don't need to हैव एनी प्रोग्रामिंग स्किल. आपको प्रोग्रामिंग स्किल हो, आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है. यू सिंपली आपको बस कोडिंग करनी होती है और इसलिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हो. ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा कैन बी एडेड ऑन द वेब पेज. With the help of HTML coding, you can add on your web page. You can add graphics, pictures, video, audio on your web page. Requires just a text editor for coding, which means you don't need any specific application for coding in HTML. फॉर एग्जाम्पल आप C++ पे जब कोडिंग करते हो तो आपको C++ इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. जावा पे कोडिंग करनी होती है तो जावा का स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है. स्क्रैच में कुछ गेम्स बनाने हैं, कुछ एप्लीकेशन डिजाइन करने होते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रैच का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है. बट टू यूज इन HTML यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन. आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती. जस्ट यूज टेक्स्ट एडिटर विच इज़ अवेलेबल इन एवरी लैपटॉप, इन एवरी डेस्कटॉप. आपको बस टेक्स्ट एडिटर यूज करना है, जो कि सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आप यूज करते हो, कंप्यूटिंग डिवाइस, उस सारे में टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल रहता है. तो आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती HTML कोडिंग के लिए. ऑफर्स compatibility with all web browser, which means it can HTML कोडिंग आपको सारे वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता है. HTML वेब ब्राउज़र सपोर्ट्स ऑल द वेब ब्राउज़र. इसकी कोडिंग का जो आउटपुट
डिस्प्ले होता है, ये सारे वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, विच मीन्स आप सारे वेब ब्राउज़र में अपनी कोडिंग के आउटपुट को देख सकते हो. And now drawbacks of HTML, or you can say limitation of HTML. HTML is never considered as programming language. It is a scripting language, which means HTML is not a programming language. Which means you cannot develop a software or cannot design a game or some software like it is just a markup language, or you can say scripting language, which is used to design a layout of web page. That's it. You cannot create design a software or design a web page with the help of HTML. HTML is not a word processing tool. आपका HTML वर्ड प्रोसेसिंग टूल भी नहीं है. वर्ड प्रोसेसिंग टूल मीन्स लाइक वट वो सारे एप्लीकेशन जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग टूल हैं. तो इसमें क्या होता है, इनमें इनबिल्ट सारा कुछ एडिट करना फॉर्मेटिंग के लिए होता है. लाइक अगर आपको टेक्स्ट के कलर चेंज करने होते हैं तो MS वर्ड में आपको टेक्स्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन दिया होता है. तो आप बस जस्ट आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो और देन क्लिक आप करते हो उस ऑप्शन पे और आपका कलर चेंज हो जाता है. बट HTML आपका वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है. सो आपको सारी चीज़ें करने के लाइक टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ टैग्स की यूज करनी पड़ेगी, कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी. Now come to the HTML document structure. How can you write HTML on HTML की कोडिंग कैसी होनी चाहिए. ओके, सो here you can see HTML जनरल स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट हैज़ 2 सेक्शन, हेड एंड बॉडी. आपका जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का जो जनरल आपका जो होता है, जनरल डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है. एक होता है हेड एंड सेकंड वन इज बॉडी. हेड सेक्शन contains general information about the document. The head section contains the tags that define the header of the document, usually displayed on the top of the browser window. Head section में क्या होता है, वो वेब पेज से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं वो वहाँ पे उसको डिफाइन किया जाता है हेड सेक्शन में. लाइक टाइटल वेब पेज का जो टाइटल होता है जो कि ब्राउजर विंडो के टॉप पे शो होता है, ये सारा कुछ आपको हेड सेक्शन में शो करता है. एंड द सेकेंड वन इज बॉडी सेक्शन. Body section contains the content to be displayed on the web page. It includes text, graphics, and other HTML elements that provide control and formatting effect to a page, like font, paragraph, list, and other elements. तो बॉडी सेक्शन में क्या है कि वो सारा कंटेंट जो भी आप वेब पेज में डिस्प्ले करना चाहते हो, लाइक पिक्चर, टेक्स्ट, जो भी आप डिस्प्ले में चाहते हो, अपने वेब पेज में चाहते हो कि ये होना चाहिए, वो सारा कंटेंट आप बॉडी सेक्शन में यूज करोगे. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स, पिक्चर, चार्ट्स, जो भी आप चाहते हो कि आपके वेब पेज में डिस्प्ले हो, वो सारा कुछ आपके बॉडी सेक्शन में कंटेन करता है. So here you can see structure of HTML, which is like this: HTML head, title, in title of web page. So here you can see HTML tag and then head tag. Whenever you write coding on for web page, you have to start that coding with HTML tag. HTML, you can see HTML opening tag and closing tag. HTML tag opening tag और closing tag के बीच में सारी कोडिंग आपकी होगी. देन हेड टैग, जो भी वेब पेज का जो भी होगा, सारा कंटेंट जो वेब पेज के हेडिंग में डिफाइन डिस्प्ले करना चाहते हो, वेब पेज के बारे में जो कुछ बताना चाहते हो, वो हेड सेक्शन में डिफाइन करोगे. एंड देन वाट एवर यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर वेब पेज, जो कुछ भी आप वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हो, वो सारा कुछ बॉडी सेक्शन में होता है. देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज tags. So after understanding document of structure, the next topic is tag. What is tag, or you can say what are tags? So tags are building blocks. Tags are building blocks of web page. It is used to give instruction to web browser how data should be displayed on web page. Tags are also known as element. तो टैग्स क्या आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, विच मीन्स आपका जो वेब पेज पे आप जो वेब पेज क्रिएट करते हो, तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों को आप एक साथ कंटेन करके जो वेब पेज क्रिएट करोगे, वो टैग्स है. टैग छोटे छोटे टैग्स को यूज़ करके आप पूरे वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हो. ये टैग्स का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना. वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपका वेब ब्राउज़र कैसा डिस्प्ले होना चाहिए. विच मीन्स विद द हेल्प ऑफ टैग, आप टैग के कोडिंग के हेल्प से ही ब्राउज़र आपके वेब पेज को डिस्प्ले करेगा कि वेब पेज आपका कैसा दिखना चाहिए. An HTML tag is a collection of opening tag, closing tag, and context between them. We can include non-text items such as image, links, and list on the web page using the tags. आपके HTML tag में
ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है और कंटेक्स्ट। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ कंटेक्स्ट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ टैग यू कैन आल्सो ऐड नॉन टेक्स्ट आइटम लाइक pictures, charts, list, whatever you want on your web page. Tags are not case sensitive, which means you can write tags either in small letter or capital letter, whatever you want. आप अगर चाहते हो कि कैपिटल लेटर में सारे टैग्स को लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। और आप चाहते हो कि स्मॉल लेटर में सारे टैग्स को लिखना है, तो आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Or the HTML tags are typed inside the angular bracket. Here you can see angular bracket. सारे HTML tags जो हैं वो angular bracket के अंदर टाइप होते हैं। The opening tags are written the less than sign and the greater than sign, and the closing tags are written within less than sign and greater than sign with a forward slash. Here you can see opening tag, less than sign, then tag name, and then greater than sign. This is the opening tag. And the closing tag sign, in closing tag sign, less than sign, tag name, and forward greater than sign. You can see here a forward slash is just in front of tag name. क्लोजिंग टैग में क्या होगा कि आप जो भी टैग नेम यूज कर रहे हो उसके जस्ट पहले, टैग नेम के जस्ट पहले आपको एक फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होगा उस टैग को क्लोज करने के लिए, क्लोजिंग टैग यूज करने के लिए। all HTML tags are predefined एंड कैन बी कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। आपका जितने भी HTML टैग्स है वो प्री डिफाइन, मतलब सारे पहले से डिफाइन किए, आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, ये सारे पहले से प्री डिफाइन होते हैं। और इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, विच इज HTML कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। Container tag is also known as pair tag, couple tag, and on-off tag. And empty tag is also known as unpaired tag, standalone tag, and singular tag. So let's discuss these 2 tags one by one. And the first one is container tag. Container tag refers to tag that contains an opening tag as well as closing tag, that they include context between opening tag and closing tag. कंटेनर टैग हम किसको बोलते हैं? वैसे टैग जो कि जिसमें ओपनिंग टैग भी होते हैं और क्लोजिंग टैग भी होते हैं, दोनों टैग होने चाहिए। हियर यू कैन सी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो वो टैग जिसमें ओपनिंग टैग भी हैं और क्लोजिंग टैग भी हैं वो कंटेनर टैग कहलाते हैं। ये इसमें क्या होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप कंटेक्स्ट टाइप करते हो, वट एवर यू वांट टू डू विथ योर वेब पेज, वो सारा कंटेक्स्ट आप इनके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में टाइप करते हो। HTML टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग। ये सारे जो टैग हैं, HTML टैग, बॉडी टैग, हेड टैग एक्सेट्रा, ये सारे कंटेनर टैग है, विच मीन्स कंटेनर टैग शुड बी नीड्स टू बी क्लोज। आपको इनको क्लोज करने की ज़रूरत रहती है हमेशा। whenever you use container tag you have to be close the container tag. Okay, and the next one is empty tag. Empty tag refers to tag that contains only an opening tag. They do not enclose any data, instead it does some function on their own. Empty tag में क्या होता है कि आपका सिर्फ ओपनिंग टैग यूज होता है। Here you can see here opening tag, लेस देन साइन, टैग नेम एंड देन ग्रेटर देन साइन, सिर्फ ओपनिंग टैग यूज होता है एम्प्टी टैग में। यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, और चूंकि कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता तो किसी तरह का कोई कंटेंट, कोई डाटा आप टाइप नहीं करते एम्प्टी टैग के साथ। और क्योंकि विदाउट अब डाटा नहीं टाइप, ये खुद से अकेला सिर्फ ओपनिंग टैग ही ये कोई भी जो भी फंक्शन करता है ये खुद से कर सकता है। BR टैग, HR टैग आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी टैग. So these are the tags and their its 2 categories. Now the next topic, attributes. So what is attribute, or can say what are attributes? An attribute is a property that provide additional information about HTML tags. Attribute का एक property है जो कि आपके HTML टैग के बाद का एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब उस टैग में और क्या क्या उसमें फीचर्स है वो सारा कुछ आपको बताता है. इट इज़ यूज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ टैग, और यू कैन से एट्रीब्यूट इनहेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ अ टैग. अब एट्रीब्यूट को आप साथ में यूज करते हो, टैग के साथ यूज करते हो, तो क्या होता है, लाइक आप अगर कोई टैग है फॉन्ट टैग, तो फॉन्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक कलर, साइज, फेस. तो यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट. तो ये क्या करता है, आपका जो फॉन्ट टैग है उसमें आप कलर एट्रीब्यूट यूज करते हो, तो आप अपने फॉन्ट टैग में टेक्स्ट की फॉन्ट की कलर चेंज कर सकते हो. तो ये क्या करता है, आप ये टैग के फंक्शनैलिटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है. एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज यूज इन ओपनिंग टैग.
ऑल एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेम एंड वैल्यू। आपको एट्रीब्यूट जो यूज करोगे, किसी भी टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स आपके ओपनिंग टैग में ही यूज होंगे, आप क्लोजिंग टैग में यूज नहीं करोगे, सारे एट्रीब्यूट्स आप ओपनिंग टैग में यूज करोगे। एंड ऑल एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट विच आर नेम एंड वैल्यू। नेम इज द प्रॉपर्टी दैट यू वांट टू सेट एंड द वैल्यू इज व्हाट यू वांट फॉर द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी, विच मीन्स आपका जो एट्रीब्यूट है वो दो भाग में डिवाइड होता है, विच इज नेम एंड वैल्यू। तो नेम क्या होता है, जैसे आप जो भी कुछ करना चाहते हो, प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो, वो नेम होता है। एंड वैल्यू क्या होता है, उस प्रॉपर्टी में क्या चेंज करना चाहते हो, ये वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपको फॉन्ट के साथ कलर का एक एग्जांपल दिए थे, लाइक कलर आपका एक एट्रीब्यूट है जो फॉन्ट टाइप के साथ यूज हो रहा है। तो कलर जो है ये प्रॉपर्टी, आप कलर चेंज करना चाहते हो, ये प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो गया, नेम हो गया। एंड वैल्यू, अब कलर में कौन सा कलर चेंज करना चाहते हो, लाइक कलर में पिंक, ब्लैक, येलो, कोई सा कलर आप यूज करना चाहते हो, तो वैल्यू हो गया। तो वैल्यू इज व्हाट यू वांट फॉर द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में किस तरह का चेंज लाना चाहते हो, वो वैल्यू है। सो हेयर कैन सी HTML एलिमेंट टैग स्ट्रक्चर। आप टैग को किस तरह से टाइप करोगे वो है यहाँ पे देख सकते हो। सिंटैक्स में टैग नेम, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप लेस देन साइन, देन टैग नेम, जो भी टैग आप यूज करना चाहते हो टैग नेम दोगे। देन आफ्टर गिविंग स्पेस, एक स्पेस के बाद, एक दो स्पेस के बाद आप एट्रीब्यूट्स नेम, यू हैव टू टाइप एट्रीब्यूट्स नेम एंड इक्वल टू साइन, देन द वैल्यू फॉर इट। आपको एट्रीब्यूट नेम टाइप करना है और फिर उसका वैल्यू प्रोवाइड करना है आपको। आफ्टर प्रोवाइडिंग वैल्यू यू हैव टू क्लोज दिस ओपनिंग टैग को आपको क्लोज करना है विद एंगुलर ब्रैकेट। देन टाइप द कंटेंट वाट एवर यू वांट टू टाइप ऑन योर वेब पे, जो भी कंटेंट आप टाइप करना चाहते हो कंटेंट टाइप करोगे। एंड आफ्टर टाइपिंग द कंटेंट यू हैव टू क्लोज द that tag, or you have to use closing tag। आपको जो भी टैग आप ओपन किए उस टैग को फिर क्लोज करना है आपको। here you can see एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बॉडी टैग यूज किया गया है जो कि आपका ओपनिंग टैग में है, मतलब लेस देन साइन के बाद बॉडी टैग नेम यूज किए हैं। आफ्टर यूजिंग टैग नेम स्पेस दिए एंड देन बीजी कलर इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। बीजी कलर आपका बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है जो यूज किए। एंड देन इक्वल टू साइन एंड द वैल्यू ऑफ, ये कैसे वैल्यू ऑफ बीजी कलर आपको डबल कोट के अंदर टाइप की हो पिंक में। एंड देन टाइप द कंटेंट एंड फिर क्लोज द टैग को, फिर टैग क्लोज करना है। और इस तरह से आप टैग का स्ट्रक्चर, इस तरह से आप जब भी टैग यूज करोगे या एट्रीब्यूट के साथ टैग यूज करोगे आपको इस तरह से ही टाइप करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज so I hope you all understand about tags and its attribute. Now let's discuss some guidelines for writing HTML document, or you can say HTML structure. All HTML code reside between opening HTML and closing HTML tags। आप जितनी भी कोडिंग करोगे, जितने भी टैग्स यूज करोगे, सारे टैग्स और कोडिंग आपके ओपनिंग HTML एंड क्लोजिंग HTML टैग के बीच में होनी चाहिए। The information about the HTML web pages reside between opening head एंड क्लोजिंग हेड टैग्स सच एज टाइटल ऑफ वेब पेज। तो जो भी इंफॉर्मेशन वेब पेज से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन वेब पेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप हेड सेक्शन में यूज करोगे इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेड टैग। फॉर एग्जांपल आप टाइटल ऑफ द वेब पेज आप यूज किए, तो वेब पेज का जो टाइटल है वो आप हेड टैग, ओपनिंग हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग के बीच में यूज करो, ताकि आपके वेब पेज आप ओपन जब करते हो तो उसका टाइटल आपको टॉप पे शो हो सके। द एक्चुअल कंटेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज डिसाइड बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग्स। आपको जो भी कंटेंट या जो भी कोडिंग करनी होती है वो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में होनी चाहिए। वो चाहे कंटेंट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंटेड इन नेम एंड वैल्यू पेयर सच एज नेम इक्वल टू डबल इन द वैल्यू इन डबल कोट। आपका जो एट्रीब्यूट है नेम वैल्यू के पेयर में आता है हमेशा, तो नेम के साथ वैल्यू आपको पुट करना है। टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस। आपका जो टैग नेम है उसमें कभी स्पेस नहीं यूज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हियर कैन सी राइटिंग बॉडी एज बी स्पेस ओ स्पेस डी स्पेस वाई इज़ नॉट करेक्ट। आप अगर बॉडी को बी स्पेस दे के लिखते हो बी स्पेस ओ स्पेस तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा बी ओ डी वाई मतलब कि जो भी टैग नेम है वो साथ में लिखना है, स्पेस नहीं यूज करना है। कंटेनर टैग शुड ऑलवेज बी क्लोज बिकॉज an unclosed tag can lead to undesired result, and whenever you use container tag you need to be close the container tag, because अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो फिर कुछ न कुछ आपको अनडिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएंगे आपके उस कोडिंग के वजह से। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।